Hello students, very good morning to all of you. Today is 21st April 2020. This lecture is for 12th students. Today's topic is numericals related to integrated rates and half-life period. So last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ integrated rate for zero and first order reaction and half-life periods. ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ KT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A0 ਮਾਈਨਸ A। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ A0/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ T ਹਾਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A0/2 K। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, KT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.303 log of A0/A। A0 ओरिजिनल कंसनट्रेशन है जो टाइम T 0 है, A हैगी है फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है जी, A0 ओरिजिनल या इनिशियल कंसनट्रेशन, A फाइनल कंसनट्रेशन। T हाफ इहदा की हो गया 0.693/K। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट ऑफ 0.0051 per minute if we begin with 0.10 molar concentration and final concentration is 0.04 molar. What is the time taken to decrease this concentration? अच्छा, एक concentration ਨੂੰ decrease ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਨਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਨਟ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਈਅਰ ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਹਾਵਰ ਇਨਵਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, A0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ। ਤਾਂ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ KT 2.303 log of A0/A। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, A0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੌਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਨੀਚੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ 10/4 log of x/y ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, log of x ਮਾਈਨਸ log of y। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, log 10 ਮਾਈਨਸ log 4। log 10 ਦਾ log 1 ਹੁੰਦਾ, log 4 ਦਾ log ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ log ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਬਲ। 2 ਦਾ log ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.3010। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ log ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੇਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ log ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ log 4 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.6020। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 180 ਮਿੰਟਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 0.10 ਮੋਲਰ ਤੋਂ 0.04 ਮੋਲਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ T ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਸ। ਅਗਰ 25% ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 75% ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 25% ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਗਈ 75, ਮੀਨਸ 25% ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ 75। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਸ ਫॉर 25% ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ A0 ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ X ਹੈ, X ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। 25% ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਗਈ, X ਚੋਂ 25% X ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ A0 ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 100 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 100 ਮਾਈਨਸ 25 ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ,
इदां करना, इदां कर लो। ए नॉट की कंसनट्रेशन सपोज कर लो 100 है, ए दी फिर कितनी हो गई, रह कितनी गई 25% तक खत्म हो गई, मीनस 100 के विचों 25% खत्म हो गई, रह कितनी गई 75। उवें करना, उवें करना। तो आपां नूं ए नॉट ए पता लग गया, टी पता लग गया, तो आपां पहली जिहड़ियां वैल्यूज़ दित्तियां ने उन्हां तों के दी वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। ठीक है जी। तो के दी वैल्यू इदां कैलकुलेट हो जाएगी, 100/75 आ गया, 100 का लॉग अलग कर लो, 75 का अलग कर लो, जां इहनूं मतलब कि डिवाइड करके 4/3 आ गया। तो अगेन इनू की लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि 1 तो लैके 10 तक लॉग मैं तुहानूं लिखा दूँगा, तो याद कर लिओ। लॉग 4 का सेम ही है 0.6020, 3 का 0 पॉइंट इत्थे आना 0.4771 आ जाना, सॉरी इत्थे गलती हैगी 0.4771, तो इसका आंसर आ गया 0.0144 पर मिनट। तो यह के दी वैल्यू आ गई। मीनस अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ वैल्यूज़ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ के रेट कॉन्सटेंट फाइंड आउट कर ली। सैकेंडली ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि टाइम कैलकुलेट करना है अगर 75 डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है जी, 75। हुण सेम ही इत्थे फिर आप ए दी वैल्यू कितनी सपोज कर लांगे, सॉरी ए नॉट दी वैल्यू कितनी सपोज कर लांगे, एक्स जां 100। ए दी वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी उत्थे, तो 100 माइनस 75 यानी कि उत्थे 25 रह जाएगी। क्लीयर, जे एवें करना एवें कर दो। ए एक्स सपोज किया आपने, तो यह कितनी रहेगी, एक्स दे विचों 75% माइनस कर दो, तो 0.25 एक्स रह जानी है। वैल्यूज़ ये पुट कर लो, तो लॉग ये भी सिंपल आ रहा है, लॉग 4 आ गया कला, लॉग 4 का 0.6020 आ गया, तो टाइम कितना आ गया 96.3 मिनट। ठीक है जी। तो अगर अपने को फस्ट ऑर्डर रिएक्शन है 25% डिकम्पोजिशन होते 20 मिनट्स लगते हैं, तो 75% कंप्लीट होते कितना टाइम लगेगा 96.3 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10th टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी। हुण आपां ने की फाइंड आउट करना है, एक फस्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ा हैगा फस्ट ऑर्डर है सॉरी, तो उहदी जिहड़ी रेट कॉन्सटेंट वो आपां नूं गिवन है। टाइम फाइंड आउट करना है कि कदों जां किन्ने टाइम च इहदी कंसनट्रेशन जिहड़ी हैगी आ ओरिजिनल कंसनट्रेशन नालों 1/10th टाइम रह जाएगी। क्लीयर, मतलब कि घटन ते कितना टाइम लग्या, इन्नी कंसनट्रेशन रहने ते कितना टाइम लग्या। के दी वैल्यू गिवन है, ए नॉट की वैल्यू सपोज कर लिया आपां एक्स है, ए दी वैल्यू कितनी होगी फिर x/10। ठीक है, मीनस यदी कंसनट्रेशन 1/10 टाइम्स डिक्रीज होगी, तो ए दी वैल्यू क्या आ गई x/10 ना। हुण ये वैल्यूज़ पुट करांगे तो सिंपल जहा न्यूमेरिकल हो गया, टी दी वैल्यू फाइंड आउट होगी। इत्थे जिहड़ा लॉग आ गया लॉग 10 का ही आऊगा, लॉग 10 कितना होंदा है 1। ठीक है जी। नैक्सट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग k इज इक्वल टू 5.48 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ना उन्होंने कहा गा कि टाइम 2/3 फाइंड आउट करना, मीनस जी अपनी कंसनट्रेशन है वो 2/3 खत्म होने ते कितना टाइम लग्या। देखो 2/3 कंसनट्रेशन तो खत्म हो गई, रह कितनी गई, वो ए दी वैल्यू होगी। अगर आप सपोज कर लिए कि ए नॉट की वैल्यू एक्स है, तो ए दी वैल्यू कितनी होगी फिर एक्स के विचों 2/3 एक्स माइनस करके देखो बाद कितनी बचती है कंसनट्रेशन x/3। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दो, के दी वैल्यू भी गिवन है, तो अपने को टी दी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी। नैक्सट न्यूमेरिकल है, आप हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना, के दी वैल्यू आपको दी हुई है। देखो के दी वैल्यू के दिता होया है पर सैकेंड, इट मीनस ये फस्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फस्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किंदा 0.693 बैके, तो सीधा जा आंसर आ गया था। क्लीयर है। नैक्सट है सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले आप इंटैग्रेटर रेट इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे। ठीक है, फिर आप हाफ लाइफ पीरियड कढ़ांगे ना। सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लिखनी हो, रेट की आ जाएगी -dA/dt के A² आ जाएगा इतने। ठीक है जी, A²। तो आप इस तो बाद की करांगे, जेडे वेरीएबल्स ने उन्होंने अलग अलग करांगे, ए वाली टर्म्स एक साइड पर लै जाओ, टी वाली टर्म्स एक साइड पर लै जाओ, फिर आप सेम उस तरह इंटैग्रेशन करांगे। क्लीयर ना। हुण इत्थे इंटैग्रेशन कादी आ रही है 1/x² × dx आ रही है, यदि इंटैग्रेशन होंदी है -1/x। ठीक है, लिमिट्स पुट करन तो बाद ये इदां दा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। नाउ नैक्सट अगर आप यदि इंटैग्रेशन करिए 1/a² × dA, तो अपने को आ जाएगा -1/a। एक माइनस पहला लग गया, माइनस माइनस की हो गया प्लस हो गया, प्लस लिख लिया मैं।
इस बार लिमिट्स पुट करेंगे, पहला अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, लिमिट्स पुट हो गई। ठीक है जी। इधरली साइड पर टी का डी टी का इंटैग्रेशन किया सी, टी आ गया, लिमिट्स 0 टू टी आ गई, तो इत्थे की आ गया टी माइनस 0 और की आ गया इत्थे के टी। तो यह आ गया सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन। ना इन्हू थोड़ा जिहा मॉडिफाई कर लिया आपने, 1/a एक साइड पर लिख लिया, बाकी सारिया टर्म्स एक साइड पर लिख लिया। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, y 1/a है, c 1/a0 है, m k दे इक्वल है, x t दे इक्वल है। अगर आप 1/a एंड t दे विच ग्राफ प्लॉट करिए तो वह इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यह लाइन जिथे वाई एक्सिस नूं कट करती है, ओरिजिन तो पॉइंट तक जी डिस्टेंस है उन्होंने आप 1/a0 काउंट करांगे, स्लोप जी हैगी है के दे इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। इनक्रीजिंग ऑर्डर के ग्राफ क्यों बनया, बिकॉज इतने जी स्लोप है वो की है पॉजिटिव है, तो करके इनक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करिए, ए की जगह तो आप a0/2 पुट करना, कैलकुलेट करके अपने को टी हाफ आ गया 2/ka0। ठीक है जी। तो ये आ गया। नाउ नैक्सट थोड़ा जिहदे नाल रिलेटेड अगे कम है, अगर आप 0 फस्ट सैकेंड तो थर्ड ऑर्डर तिना का हाफ लाइफ पीरियड कंपेयर करिए, इत्थे मैं लिख रखा तिना का, ठीक है, चारों का सॉरी, तो टी हाफ यदा की आ गया a0 की पावर 1, यदा a0 की पावर 0, यदा a0 की पावर -1, यदा a0 की पावर -2, मीनस घट रहा है, पावर माइनस के जा रही है। अगर जनरली आप इन्हू लिखिए तो की लिख सकते हैं, टी हाफ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1 माइनस n, ये लिख सकते हैं। अगर n की वैल्यू इतने आप 0 पुट करिए तो सीधा a0 आ रहा, 1 पुट करा तो a0 की पावर 0 आ रही है, 2 पुट करा तो a0 की पावर -1 आ रही है। ठीक है जी। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आ वो इदा a0 के नाल वेरी करता है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन देखिए, टी हाफ तो a0 का ग्राफ अगर आप 0 ऑर्डर के लिए देखिए स्ट्रेट लाइन आती है, ओरिजिन के दी पास करती है, ये कॉन्सटेंट आती है क्योंकि a0 तो डिपेंड ही नहीं करता। ये अगर आप टी हाफ तो 1/a0 का ग्राफ बनाइए वो स्ट्रेट लाइन आता, ये टी हाफ तो 1/a0 का स्क्वेयर वह ग्राफ बनाइए तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है जी। तो आ गया जनरली मीनस आप ये लिख सकते हैं कि टी हाफ जोड़ा है a0 की पावर 1 माइनस n के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर n इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। आ ग्राफिकल रिप्रजेंटेशनस ने, ये अपने को जनरल फॉर्मूला आ गया टी हाफ का, मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है इनीशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक सिर्फ फस्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिहदे विच जिहड़ा हाफ लाइफ पीरियड है वो ओरिजिनल या इनीशियल कंसनट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ वो डिपेंडेंट है। क्लीयर। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो इदां के क्वेश्चन इतों 4-5 आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता कि इस तरह का किहड़ा ऑर्डर है जिहदे विच हाफ लाइफ पीरियड इनीशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो फस्ट ऑर्डर रखा। इदां का किहड़ा ऑर्डर है रिएक्शन का जिहदे विच जिहड़ा हाफ लाइफ पीरियड है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है a0 दे, तो फस्ट आ गया, सॉरी 0 ऑर्डर आ गया। इनवर्सली किहदे लई वेरी करता, सैकेंड तो अबव अगर जिहड़ा हैगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इनवर्सली वेरी करता। ठीक है जी। तो ये थोड़े जिहे न्यूमेरिकल करने की आपां कोशिश की है, तुसीं भी न्यूमेरिकल्स करके वेख लेने हैं। अगर फिर भी नहीं समझ लगता कोई मैनू दस दिया करो, न्यूमेरिकल ही सेंड कर दिया करो, चाहे मैं तुहानूं सॉल्व करके नाले समझा दिया करूँगा, नाले तुहानूं सॉल्व करके दे दिया करूँगा। कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक चो कोई भी दिक्कत लगती है ਜਾਂ ਤਾਂ कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, ਜਾਂ मैनू अलग तो मैसेज कर दो। ठीक है जी। तो अज की वीडियो सिर्फ इन्ना की सी, नैक्सट वीडियो मिलते हैं।